नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सदस्य न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। कर्नाटक में नई सरकार के गठन को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मंत्रियों ने शपथ ली है, विभागों का बंटवारा हुआ, सत्ता का नया समीकरण बना, लेकिन सरकार के भीतर से ही अब असंतोष की आवाजें साफ तौर पर उठने लगी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नवनियुक्त मंत्री साफ तौर पर इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की घटना को नहीं बताता है, बल्कि ये उस अंदरूनी कलह को और साफ तौर पर मजबूत कर देता है जिसकी चर्चा सरकार बनने से पहले लगातार हो रही थी। बता रहे कि रामलिंगा रेड्डी का यह आरोप है कि उनसे बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था। उनका दावा है कि खुद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उन्हें आश्वासन ये दिया था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वे ये विभाग छोड़ देंगे और रेड्डी को विभाग सौंप देंगे। लेकिन रेड्डी को सौंप देने की बातें सिर्फ बातें थी, लेकिन विभागों के बंटवारे के बाद ऐसा हुआ ही नहीं। अब नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर सत्ता संघर्ष साफ तौर पर शुरू हो चुका है? क्या मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई अब नेताओं की नाराजगी के रूप में सामने आ रही है? क्या मंत्री पद और विभागों को लेकर असंतोष सरकार की स्थिरता पर असर डालेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस की यह सरकार विपक्ष के निशाने पर आने से पहले ही अपनों की नाराजगी से घिर गई है? आज की बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर। क्या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर कलह शुरू हो चुकी है? क्या वादा खिलाफी के आरोप सरकार की साख पर सवाल है? क्या सत्ता का संघर्ष अब सड़क पर साफ तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? क्या ये तमाम बड़े सवाल है। आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जानने की ये कोशिश करेंगे कि कर्नाटक में जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति आखिरकार कांग्रेस कैसे संभालती हुई नजर आएगी। जो वादे मंत्रालय को लेकर किए गए थे वो वादे पूरे होंगे क्या? क्योंकि साफ तौर पर डीके बनाम रेड्डी विवाद उभरता हुआ नजर आ रहा है और अंदरूनी कलह साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सीनियर लीडर ಅವರು ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವ್ರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾತನಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹನೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ 89ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Whatever it is will be sorted out by the seniors. There is no issue. Whatever it is will be sorted out. Yes, this is very unfortunate. We have seen these things for the development of this thing today. These things he has resigned out of his frustration. These things he has been should have been given as a Bangalore City Development Minister, which they have promised last time, like that how they have promised the CM and program last time. These things and all. When they given the transport minister, they have promised next time in the reshuffle they are going to give a city development. This thing which DK Shiv Kumar is holding it, and now they have not disappointed him. So therefore that is why he is disappointed, and he has been 8 years consequently won as a MLA from this Bangalore, so he knows the depths and corners of the Bangalore. So development, he was inclined to develop the Bangalore these things, but unfortunately they are not given him opportunity. So that is why he has resigned out of these things. But we all protest him as being the loyal Congress workers from this BTM constituency. This thing you have to give him the Bangalore development to grow this progress. This thing. Congress has become a laughing stock. People. कर्नाटक में एक बार फिर से स्थिति जटिल होती हुई नजर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना हबीब खान भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में बस जुड़ने वाले हैं, और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता भी अविरल मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। अविरल, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अब लगातार विभागों के बंटवारे की बात होती है। पहले दावा कर दिया जाता है, वादा कर दिया जाता है, और अब पद मिलने के बाद रेड्डी साहब को तो जो वादा हुआ था उसके अनुरूप विभाग दिया ही नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा यहां पर दे दिया। अब किस तरीके से कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है वो सुलझती हुई नजर आएगी? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर जाए अंदरूनी कलह की विशेष रूप से जिस प्रकार का आपका सवाल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज बात है। अंदरूनी कलह है, पूर्ण रूप से बौखलाहट है, घबराहट है। राष्ट्रीय स्तर की जो कांग्रेस है वो तो बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, समाप्त है। कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए इनकी नहीं है। और अगर स्टेट लेवल की बात कर ली जाए, विशेष रूप से अगर कर्नाटका की बात कर ली जाए, तो वहां खेमे हैं, वहां खेमेबाजी है, गुटबाजी है, कई गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। दूसरी चीज ये है, देखिए अगर कोई चीज प्रद्युम्न जी आप वादा करेंगे
या मैं वायदा करूंगा या सुरेंद्र स्वामी जी वायदा करेंगे, उस चीज को हम पूरा करेंगे। अब ये कांग्रेस में भी इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार के नेता हैं, जो चीज सामने अब देखने को मिल रही है, या तो वादा ना करें, और अगर वादा कर रहे हैं कि जो इस चीज को देंगे, इस मंत्रालय को देंगे, इस मिनिस्ट्री को एलोकेट करेंगे, तो उसके बाद ना दिया जाना, उस पोर्टफोलियो को ना दिया जाना, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो वादा ना किया जाए, और अगर वादा किया जा रहा है तो उस चीज को पूरा करना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है, वो किसको क्या दे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री वादा करता है किससे कि इस व्यक्ति को ये फलाना विभाग देगा या एक तरीके से ये पोर्टफोलियो देगा, उसके बाद ना दिया जाना, मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से झूठ है। और इसी प्रकार का झूठ है जिसे राहुल जी ने कहा था, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर क्या क्या वो कर्ज माफी और तमाम सारी चीजें 10 दिन और इस प्रकार की बात की जा रही थी। तो मैं समझता हूँ ये हवाबाई बातें करने वाले लोग हैं, और ये आलू से सोना तमाम सारी इस प्रकार की जो बातें करते हैं, ये बहुत हास्यास्पद है। जनता में भी ऐसी बातें करते हैं और कमरों में भी ऐसी बातें करते हैं। इनकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई यकीन नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। इस चीज से ये साबित हो चुका है, और ये भी साबित हो चुका है कि इनके कई गुट हैं, कई खेमे हैं, अलग अलग इनके विभाग बटे हुए हैं पूर्ण रूप से, और सबका अपना अपना गुट है, सबके पास अपने अपने विधायक हैं, अपने अपने लोग हैं। और ये जो इस्तीफा हो रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं है, इसके पीछे भी लोग हैं, अलग अलग गुट हैं। अब सिद्धरमैया जी की अगर बात कर जाए, वो नाराज होंगे, वहां से खड़गे साहब भी आते हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ नाराजगी, कुछ ना कुछ उनकी चाह होगी, वो भी कुछ ना कुछ चाहते होंगे। और अगर बात कर जाए शिव कुमार जी की, उनका अलग गुट है, तो कई कई गुट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कर्नाटक की पॉलिटिक्स से अलग करके नहीं देख सकते हैं। वो कर्नाटक से विशेष रूप से अगर आते हैं, और इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इतनी बड़ी पार्टी के, तो उनका अपना गुट है, अपना प्रभाव है, अपने लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी एक गुट है। तो तमाम सारे गुट वहां बटे हुए हैं, और ये सरकार ज्यादा लंबी चलेगी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। सरकार बहुत कम समय चलेगी, स्पष्ट है। ठीक है सुरेंद्र जी, क्योंकि विस्तार से आप समझा पाएंगे, खास तौर पर कांग्रेस में गुटबाजी का जिस तरीके से जिक्र अविरल कर रहे हैं, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि चाहे हरियाणा की बात हो, हरियाणा में भी कई सारे गुट, हिमाचल में भी ये स्थिति देखने को मिलती थी, कर्नाटक में भी वही स्थिति बन रही है। ये गुटबाजी क्या कांग्रेस को ले डूबेगी? बहुत पुरानी पार्टी है, और पुरानी पार्टी में सभी लोगों की एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो गुटबाजी तो होती है, अपने अपने इंटरनल ग्रुप्स होते हैं। लेकिन इसमें मजेदारी क्या है? मजेदारी ये है कि डीके शिव कुमार ने रामलिंगा रेड्डी को बहुत वादा किया कि भाई ये जो बेंगलोर डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, ये मैं आपको छोड़ के दे दूंगा, क्योंकि डिप्टी सीएम थे तो ये उनके पास था ये विभाग। अब ये विभाग कहाँ गया वो आप बता नहीं रहे, वो चला गया सिद्धारमैया के लड़के के पास। तो ये तो बार्गेन हुआ है, भाई आप मुख्यमंत्री बन रहे हो तो ये डिपार्टमेंट आपको देने पड़ेंगे। अब वो बेचारे फंस गए, अब वो रामलिंगा, उनको कहां से दें रामलिंगा रेड्डी को वो डिपार्टमेंट? अच्छा, उस डिपार्टमेंट में ऐसा क्या है खास, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में बेंगलोर का ग्रेटर बेंगलोर भी बन रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, आईटी हब है, राजधानी है, और सारी वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, आईटी की इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो वहां जो सारे का सारा कार्यक्रम है वो अब है, वहीं से फायदा है। और अब 2 साल इस सरकार को रह गए हैं, 2 साल के बाद डीके शिव कुमार का नंबर लगा है, तो उनके जो चहेते हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि भाई ये 5 साल की कसर हम पूरी करें, हमें भी मौका मिले। दूसरी तरफ मुस्लिम्स का भी चल रहा है, वो उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारे 4-5 लोगों को आप एडजस्ट कीजिए। अभी तो उनके स्पीकर जो हैं वही मुस्लिम है एक। अब बताइए, वो कह रहे हैं 4-5 बनाइए, कुल 9 एमएलए हैं मुस्लिम्स के, उसमें वो कह रहे हैं हमारे 5 लोगों को आप सरकार में शामिल कीजिए। एक तो आपने कर दिया स्पीकर, 4 और लोगों को मंत्री बनाइए। तो ये जो इस समय जो एक बोलते हैं ना कि भाई ये आखिरी है, ट्रेन में सब चढ़ जाओ, जिसका काबू लगे। जैसे वो बॉम्बे की लोकल ट्रेन आती है ना, तो उतरने से पहले लोग उसमें घुसने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। तो ये जो कैबिनेट है किस समय जो कांग्रेस में बनी है, ये एक लोकल ट्रेन हो गई है। लोग सोच रहे हैं भाई बैठ गए तो अब बैठ गए, अब की बात लोकल ट्रेन। अब इस भीड़ में आप अगर नहीं घुस पाए डिब्बे में, मंत्रिमंडल कैबिनेट का डिब्बा है, उसमें आपको एंट्री नहीं मिली, तो आप चूक जाएंगे। और फिर लोग चाह रहे हैं कि भाई कोई सभी चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट क्लास में ही घुस जाएं, अच्छे अच्छे महकमे मिल जाएं, पैसे वाले महकमे मिल जाएं, रुतबा रहे, लोगों को अप्लाइज करें।
तो वो झगड़ा बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि समय नहीं है, अब आगे स्कोप नहीं है ना कि भाई चलो आगे एडजस्टमेंट हो जाएगा, आगे हम लोग देख लेंगे किसी तरह से, आप नेक्स्ट कैबिनेट रिशफल में आपको देख लेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे भी साल भर बाद, तो फिर क्या होगा, फिर टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है, और इसीलिए वहां जो माइनॉरिटीज है जिसने खुलेआम इनका समर्थन दिया, और इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कर्नाटका को मुस्लिम सरकार बनाया नीतियों में, तो वो भी अब मांग रहे हैं अपनी हिस्सेदारी, कि हमें हिस्सेदारी दीजिए। और ये तो एक भाजपा के लिए शुभ संकेत है, अगर ये मुस्लिम मंत्रियों को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं और ये इसी तरह की मारामारी सरकार में चलती है, तो इनके कुछ आगे जब चुनाव आएंगे तो उस चुनाव में जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो इस समय, उनको फायदा होगा। और देवगौड़ा की तो अभी मालूम नहीं है पार्टी का कितना दम रहेगा अगले चुनाव तक। मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा रहेगा, तो या तो मर्ज होगी या एक किसी के साथ थोड़ा सा वो लोग जुड़ के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, जो तस्वीर हमको दिखाने की कोशिश हो रही है कि ठीक है मुख्यमंत्री बदला, तमाम चीजें हुई, सब चीजों में बदलाव आया, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हकीकत में अंदरूनी चीजें बिल्कुल सामान्य है या खींचतान वाली स्थिति है अभी? नहीं, देखिए खींचतान वाली स्थिति इसलिए है कि सिद्धारमैया का जो ग्रुप है वो अहिंदा ग्रुप है, वो अल्पसंख्यक ओबीसी एससी को लेकर के चलने वाला ग्रुप है। वो खुद भी कुर्बा कम्युनिटी से आते हैं जो कि ओबीसी कम्युनिटी है, और मुस्लिम्स भी उनके साथ ही हैं क्योंकि वो ज्यादातर उनके साथ रहे हैं। जो शिव कुमार हैं, डीके शिव कुमार, वो वोकालिंगा से आते हैं, और वोकालिंगा वहां अपर कास्ट में है, वोकालिंगा लिंगायत और ब्राह्मण्स, तो ये सब मिला के करीब 28% के आसपास इनकी वोटिंग बनती है। तो अभी तक डीके शिव कुमार ने पिछले चुनाव में ये आश्वासन दिया था लोगों को कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो जो वोकल लिंगा है वो काफी मात्रा में भाजपा को छोड़कर और शिव कुमार के पीछे आ गया था। अब डीके शिव कुमार को इन्होंने कुछ दिया नहीं, तो वो एक नाराजगी चल रही थी, और अब चुनाव आने वाले हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस को भी ये समझ में आ गया है कि जिस तरह की राजनीति, कहने को आप जाति 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 बोलते रहिए भाई, कहीं ओबीसी गिनाइए कहीं एसटी गिनाइए, पर हकीकत तो ये है ना कि भाई जो मनी बैग है, जिसके पीछे एक सॉलिड लोग खड़े हुए हैं, और अगले चुनाव में आप क्या करेंगे, तो इसीलिए बदलाव हुआ। तो वहां तो 3 ग्रुप हो गए ना, एक मुस्लिम्स की अपनी लीडरशिप है, अहिंदा की अपनी लीडरशिप है, वोकालिंगास की प्लस आप कह सकते हैं अपर कास्ट की अलग। तो ये जो तीनों गुट हैं, इन तीनों गुट में अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सिद्धारमैया बने हुए थे, बाकी लोग चुप करके बैठे हुए थे। लेकिन अब जब डीकेएस को मौका मिला है, तो जो डीकेएस ग्रुप है उसको सडनली ये लग रहा है कि अब 2 साल बचे हैं भाई, 2 साल में भी हमें एडजस्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा। अभी भी जितने मंत्री बने हैं उसमें सब में बोलबाला तो अभी सिद्धारमैया का ही है, सारे मंत्रियों के बेटे ही बन गए हैं उसमें, एक्स मिनिस्टर्स के, उनके अपने बेटे भी बन गए, खड़गे के बेटे भी बन गए। तो अगर आप इस ढंग से देखें तो 13 मिनिस्टर्स में वोकालिंगा को क्या मिला है, 2-3 मंत्रालय ही मिले हैं कुल, और उधर 9 एमएलए में वो कह रहे हैं कि हमें 5 मुस्लिम्स भी बनाइए। अब मुस्लिम्स ग्रुप को ये लग रहा है कि भाई हम थर्ड ग्रुप में हैं, अब हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये जो गुटबाजी है, देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी ये कहते हैं, गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन वो एक फोटो ऑप होता है लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन लोग भी समझते हैं दिखाने से क्या होता है, लोग समझते नहीं है क्या राजनीति। तो सबको मालूम है कि कर्नाटक में ये जो आपसी कलह है, ये आपसी कलह अब 2 साल में सत्ता और धन और साधन भोगने की है, क्योंकि अगले चुनाव में पैसे भी चाहिएंगे जी। तो इसीलिए ये, यानी कि आखिरी के जो 2 साल हैं उसकी सारी खींचतान है, इसको ये माना जाए। जी जी जी। और इसमें अभी नए मंत्री भी आने हैं, वो रुक गया है। अब उसमें डीके शिव कुमार के ग्रुप के कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, अगर उनके लोगों को एडजस्ट नहीं किया गया, क्योंकि डीके शिव कुमार ने बहुत सारे लिंगायत्स को भी प्रॉमिस किया था कि भाई, क्योंकि अभी आपको मालूम हो करीब करीब वोकालिंगा और लिंगायत मिला के 46 एमएलए हैं वहां कांग्रेस के अंदर, अकेली कांग्रेस के अंदर। तो इसलिए ये अंदरूनी कलह मत कीजिए, ये एक आप ये समझ लीजिए कि ये 2 साल में
सत्ता की सवारी की कलह है ये, कि इसमें जिसको मौका मिलेगा उसके बल्ले बल्ले, जिसको मौका नहीं मिलेगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है। तो ये कलह इसलिए चलेगी, उसमें ठीक है। ये चलनी है और इनको बड़ी मुश्किलें आने वाली, मुश्किलें तो आएंगी जी। 2 साल का सफर और तय करना। लेकिन अविरल, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ 2 साल की है, कि अगर अभी मिल गया तो ठीक है, वरना 2 साल बाद तो फिर इलेक्शन, उसके बाद फिर नई चीजें हैं, अब उसके बाद कुर्सी मिले ना मिले ये भी भरोसा नहीं है। तो वादा खिलाफी जो हो रही है, इसका असर आप क्या मान रहे हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा? इसमें मैं समझता हूँ ये लगातार होता रहता था, होता रहता है, यही होता रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर जाए, कंटिन्यू प्रोसेस कांग्रेस पार्टी में है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से गुटबाजी इनकी रहती है और इसी कारण से कांग्रेस समाप्त होती जा रही है और समाप्त होती चली जाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा, यही इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि इनकी गुटबाजी है, इनमें सब में अहंकार है, सबका अपना अपना अहंकार है। अब हरियाणा का ये आपने उदाहरण लिया था, अगर मैं हरियाणा में ही डीपली जाऊं तो नंबर 1 भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट था, लेकिन अब वो नंबर 2 हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक हरियाणा जोड़ो ऐसी यात्रा एक चला रहे थे। ब्रजेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, उनके द्वारा वो चलाई जा रही थी। उसके बाद अब नंबर 1 पे उनका गुट आ गया है कांग्रेस पार्टी में। तो नंबर 1 नंबर 2 गुट होता रहता है, किसी गुट में कम हो जाते हैं, किसी गुट में ज्यादा हो जाते हैं नेता। ये विशेष है इनकी, ये कांग्रेस पार्टी में होता है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी समाप्त हो रही है, क्योंकि इनकी विकास की आइडियोलॉजी नहीं है। गरीब किसी रूप में इन्हें पॉवर्टी की चिंता नहीं करनी, गरीब की चिंता नहीं करनी, रोजगार की बात नहीं करनी, किसी रूप में पिछड़ों की बात नहीं करनी, SC ST OBCs की बात नहीं करनी, EWS की बात नहीं करनी। इन्हें बात करनी है गुटों की, कौन किसका गुट किसका और कौन नेता किस गुट में मौजूद है, इस आधार पर इनमें चर्चा होती है। तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्र की चर्चा नहीं करते, इसलिए जनता इन्हें पूर्ण रूप से नकारने का काम कर रही है। और बिल्कुल स्पष्ट है, जहां तक विषय कर्नाटक की सरकार का, कर्नाटक में भी गुटबाजी है, तेलंगाना में इनकी सरकार है, वहां भी गुटबाजी है। इनकी जहां जहां सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां भी इनकी गुटबाजियां हैं। और सबने देखा था किस रूप में वहां गुटबाजी थी। वीरभद्र सिंह जी के बेटे की बात कर जाए और तमाम सारे उनकी फैमिली की बात की जाए, वो किस रूप में नाराज थे। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए इनकी जम्मू कश्मीर में इनकी मिलीजुली जो सरकार है, वहां भी इनकी यही गुटबाजी का काम रहता है। तो हर जगह जहां कांग्रेस की या कांग्रेस के गठबंधन की सरकार होगी, वहां गुटबाजी होना स्वाभाविक है। अब केरल में आई है और तमिलनाडु में इनकी कांग्रेस वालों की बनी है मिलीजुली सरकार, तो अब देखिए वहां भी यही गुटबाजी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। तो ये ज्यादा लंबी कांग्रेस चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता इन्हें जान चुकी है। ये गुटों में बटे हुए लोग हैं, ये विकास नहीं कर सकते, ये सुशासन नहीं दे सकते, ये गरीबी मुक्त प्रदेश नहीं कर सकते, रोजगार युक्त प्रदेश नहीं कर सकते, बेरोजगारी मुक्त प्रदेश नहीं कर सकते, सामान्य जनता की चिंता नहीं कर सकते, गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत के बारे में नहीं सोच सकते। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास यदि कोई कर सकते हैं तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, 2 साल का जिक्र आपने कर ही दिया है, तो कुल मिला के ये माना जाए कि जिस तरीके की स्थिति अभी है, ऐसे में कांग्रेस आला कमान के अंडर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। बाकी ये लोग दबाव बनाते हैं तो आला कमान को भी झुकना पड़ता है। नहीं, मैं इसका रिवर्स है, आप जो कह रहे हैं उसका रिवर्स है। कांग्रेस के हाई कमांड जो है टिका हुआ इसीलिए कि वो ग्रुपबाजी बना के रखता है। ये बिल्लियों की लड़ाई कांग्रेस में करा के बंदर राज कर रहा है। वो एक बंदर बांट के सुना है ना आपने, 2 बिल्लियां थी, रोटी का टुकड़ा लाई, वो उसको तराजू पे तोलता तोलता सारा ही खुद खा गया। तो ये जो है, आप ऐसा मत समझिए कि कांग्रेसियों में आपस में गुटबाजी है, ये इनकी एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रहती है, इनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि हर प्रदेश में कांग्रेस में ये 2-3 ग्रुप बना के रखते हैं। तो वो 2-3 ग्रुप आपस में लड़ते हैं। अब लड़ेंगे तो फैसला कौन करेगा? जज ही करेगा ना। तो जज कौन है? हाई कमान। तो इस तरह हाई कमान का अपना दबदबा बना रहता है पार्टी पे, और वो तय करते हैं इसको देंगे उसको देंगे, और फिर जिसके हक में वो तय करते हैं वो उनका खासम खास हो जाता है। फिर कुछ दिन उसको करते हैं, फिर वो उनको फीड करता रहता है। तो ये एक सिस्टम कांग्रेस में शुरू से ये रहा है, और इसीलिए जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो गुटबाजी इतनी तीव्र इसीलिए होती है। आपने अभी केरल में जब सिलेक्शन हो रहा था तब आपने देखा था, वेणुगोपाल अलग थे, सतीशन अलग थे, एक वो नाम भूल गया मैं उनका, तीसरे थे, हालांकि उनकी कोई बहुत हैसियत नहीं है,
वो अलग लड़ रहे थे कि हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। तो वो ऐसा नहीं कि उनके आपस में गुट है, ये बना के रखते हैं। मैंने कांग्रेस में यही देखा है, राजस्थान में अभी अविरल मलिक जी यहाँ का बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपने खुद देख लिया है, यूपी में आपने देखा है, कभी अजय राय आ जाता है, कभी खत्री आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं। उत्तराखंड में आप देख लीजिए, कभी हरीश रावत, कभी दूसरा, यानी कभी कि तीसरा। परिवर्तन जो है वो लगातार बहुत जल्दी जल्दी होता है कांग्रेस में, और अंदर खाने की स्थिति तो खैर जग जाहिर हो ही चुकी है। बहरहाल अब समय कम है, आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कर्नाटक की जो स्थिति है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, लगातार चीजें बिगड़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में अब क्या स्थिति और सामने आती है।